All right. Hello, my dear children. A warm welcome to this much awaited, very, very special for all of us live webinar with your favorite teachers. Dr. Sachin Kapoor today is here with us. I, Dr. Pankhuri Miglani, is here with you all, welcoming you all to this amazing session, the life-changing session as we call it. है ना, आपके सारी बातें आपके दिल की सुनने के लिए, आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी मुश्किलें कम करने के लिए, both of us are here waiting for everybody to join this session and start it on a very auspicious and positive note. I hope you all can see us, hear us properly. Yeah, let technology do its best job and connect you to great teachers, to your favorite teachers to solve all your problems. Yes, people, so lovely to have you all here. We have so many people joining us already. Bachcho, if you can see us, hear us, I can see all the raised hands. Very good. So lovely to have you all. Abbas is there, Sanjana is there, Mayank, Aditya. I can see so many lovely students here. Adarsh, fatafat, sabko le aao. Remind all your friends and family if they have not joined this. Astha, Rekha, Chitranjan, Sanjeevni, Shreyasi, Anshika, Rohit, Sobha, Vikas, Ayushman. So lovely to have you. So I will begin by telling you that I'm Dr. Pankhuri Miglani. Most of you know us. Some of you don't know us. I teach biology on Akash Byju's NEET platform. Since last 11 years, generated many doctors. Some of the students are studying in AIIMS and all the prestigious government colleges of this country, and still in the process of making futures, sculpting futures. There is less need to introduce Dr. Sachin Kapoor, generating doctors, many thousands and thousands of doctors in this country since last 23 years. Amazing teacher, my favorite teacher. Yeah, nobody teaches biology like him. So we are so lucky people. We are amazingly lucky to have him here to guide us in this a little difficult and changed time of NEET journey. Yeah, the times have changed. बहुत से बच्चे हैं जिनको NEET 2022 में थोड़ा झटका लगा. बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आकाश बायजूस प्लेटफॉर्म पर आए that we worked really hard in NEET 2022, but bio के पेपर ने फिजिक्स केमिस्ट्री भी हमसे छीन लिया और हमारा स्कोर उतना नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. Competition is increasing, seats and the ratio of number of candidates is challenging. तो ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए we have sir, you have me. You can see question and answer option on your screen. Please have a look at Q&A option on your screen. आपकी screen में नीचे option है Q&A option. Please click on that option and write all your questions. Sachin sir, over to you. Please enlighten us. Hello ji, namaskar, salam, sat sri akal. First of all, I wish you all a very warm welcome to this wonderful session. इस टेक्नोलॉजी का, आकाश बायजूस नीट प्लेटफॉर्म का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस तकनीक के जरिए हम लोग आप तक पहुंच पा रहे हैं और आप हम तक पहुंच पा रहे हैं. कहते हैं जब ख्वाहिश कुछ अलग करने की होती है, जब ख्वाहिश कुछ अलग करने की होती है तो दिल में और दिमाग में बगावत जरूर होती है. आप मेरी बात समझे? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, दिल में कुछ अलग सवाल है, दिमाग कुछ और कहता है, कई बातों पे आकर के इतना डर लगता है और महसूस होता है कि कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है. लगता तो है कि काबिलियत है हमारे अंदर, पर हमें भी कोई ऐसा मिल जाए जो हमें तराश दे, जो हमें सही रास्ता दिखा दे, और वो अध्यापक, वो मेंटर, वो शख्स ऐसा हो जिसने अपने जीवन में ये कार्य एक बार नहीं बल्कि हजारों बार करा हो. डॉक्टर पंखुरी मिगलानी ने बिल्कुल सही कहा कि आकाश बायजूस नीट के इस प्लेटफॉर्म पे
आप लोगों को ऐसे मेंटर्स, ऐसे अध्यापक मिले हैं। आज के इस सेशन का जो हमारा मकसद है, जो हमारा पर्पस है, वो ये है कि आपके अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है ना, जो छुपी हुई काबिलियत है आपकी, उसको हम बाहर निकाल पाए। राइट? आप लोग तैयारी करते हैं, अपने आप करते हैं, कई बार किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, कभी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, कई बार मुश्किलें आती हैं, कई जगहों पे अटकते हैं। ऐसे में अगर हमें एक सिंगल वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए कि किस तरह से हम अपना फोकस, अपना टारगेट एमबीबीएस को बना सके, तो बस फिर कहना ही क्या। इस समय बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स की जो पूरी है बौछार हो रही है। बस आप अपना सब्र बनाए रखिएगा और सेशन के एंड तक बने रहिएगा। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, इवन उन सवालों का भी जवाब मिलेगा जो अभी आपके जहन में शायद नहीं है। राइट जी? ओवर टू यू पंखुड़ी मैम। देखिए बच्चे क्या क्या क्वेश्चंस भेज रहे हैं, एक बार थोड़ा इंटरेक्शन बच्चों के साथ भी हो जाए। बिल्कुल सर। बच्चों, आपके क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, काफी दिल से क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। और एक बात मानकर चल लीजिए कि जो आज आपके सवाल हैं, जो आज आपकी प्रॉब्लम है, दैट इज कॉमन टू ऑल। यू आर नॉट अलोन इन दिस। ये सबका डाउट है। बिल्कुल बिना हेजिटेशन के जो पूछना है पूछो। लेनोवो इज देयर, लोगों ने, शशांक इज देयर, वैभवी इज देयर, उत्कर्ष इज देयर। लोग पूछ रहे हैं कि मैम एम्स के, सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि इस बार मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत थे, एम्स के असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत थे, तो उसकी प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी बोथ आर गोइंग टू आंसर दिस। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है नीट का ये एग्जाम, ये आपने इस बार देख लिया। जिन स्टूडेंट्स ने नीट 2022 17 जुलाई को ये एग्जाम दिया, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे तो आपके लगाए हुए कितने अंदाजे गलत हो रहे होंगे, है ना? हम पहले से एक नोशन बना लेते हैं अपने माइंड में, इस तरह का पेपर आता रहा है, ऐसा ही आएगा, चीजें आसान होंगी। लेकिन सारे भ्रम दूर हो गए जब आपने देखा इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एज इट इज एग्जामिनर ने एनसीईआरटी में से उठा करके स्टेटमेंट्स दी। बायोलॉजी ने इतना टाइम कंज्यूम कर लिया कि शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री को उस चीज को सहना पड़ा, इन द सेंस कि आपको वहां पे कम समय मिला। वेल, पैटर्न को 100% प्रेडिक्ट कर पाना कभी भी संभव नहीं होता। एक अनुभवी शिक्षक, एक एक्सपीरियंस्ड टीचर जो है बेटा, वो आपको इस तरह से तैयारी कराते हैं कि किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर आ जाए, आप उसमें डगमगाए नहीं। राइट? आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब आप लोग हमारे लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, चाहे मेरे लेक्चर्स हो, पंखुड़ी मैम के, या हमारे आकाश बायजूस नीट प्लेटफॉर्म पे जितने भी बेहतरीन टीचर्स हैं, जब वो पढ़ाते हैं तो वो केवल ये सोच के नहीं पढ़ाते कि आपको एक छोटे से तालाब में तैरना है उतनी तैयारी करवा दे। ऐसा कदापि नहीं होता। हम आपको उस तरह से तैयार करवाते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा समंदर क्यों ना हो, आप एक एक्सपर्ट स्विमर की तरह, एक एक्सपर्ट तैराक की तरह उसे पार कर सकें। बड़ी प्यारी सी कोटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पे स्क्रीन पे। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। डॉक्टर पंखुड़ी, आप भी मुझसे सहमत होंगी इस बात से कि जब इंसान ठान लेता है तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। सबसे पहले अपने आप में विश्वास रखना जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेरा ये लक्ष्य है तो क्यों है। ऐसा है कि पागलपन हो जाना चाहिए। तो जिसको ये लगन लग चुकी है कि मैंने तो वो स्टेथोस्कोप टांगना ही टांगना है, मैंने तो व्हाइट कोट पहनना ही पहनना है, एंड आई सी माई सेल्फ सेविंग लाइव्स, इफ यू हैव दैट सीरियसनेस, फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई कर लो। इट जस्ट हैपेंस। सो एब्सोल्युटली सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा मैम ने। मैम इस समय अगर मैं क्वेश्चन आंसर्स देखूं तो पूरी बौछार हो रही है। हमारे पास सार्थक है, हमारे साथ हितेश हैं जी, रेखा, दीपांशी, संजीव, वी हैव अतुल, वी हैव अंजलि, करण, ग्रेट, सक्षम, ऐश्वर्या, रोहित, पवन, वंडरफुल जी। ज्यादातर बच्चे अभी तक अभिनंदन कर रहे हैं हम लोगों को, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। जितने भी लोगों ने अभी अभी हमसे ज्वाइन करा है, मैं सबको तहे दिल से गुड आफ्टरनून कहना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आपके माता पिता या आपके भाई बहन भी साथ में बैठ करके इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार को
जरूर अटेंड करें। भावना, अमृतलाल, करण, उत्कर्ष, नरेंद्र, अनुपमा, वंडरफुल जी, ग्रेट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नीट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत से ऐसे भी हैं मैम जो नीट 2024 के लिए भी कर रहे हैं। पंखुड़ी मैम, आप भी स्टूडेंट रही हैं अपने टाइम पे, मैं भी रहा हूं। ऑफ कोर्स आज भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। एक स्टूडेंट को क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है मैम अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए? एब्सोल्युटली सर, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ मेंटर, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जितना बड़ा हमारा गोल है, जितना कीमती हमारा गोल है, उतना ही ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और वो सैक्रिफाइस काफी वर्दी होता है, क्योंकि ये 9-10 महीने का सैक्रिफाइस आगे 60, 70, 80 साल की पूरी जिंदगी बदल देता है। तो बच्चों, कई बच्चे सर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई एम एड्रेसिंग दिस टू एवरीबडी, एग्जाम मैम कब होगा? तो क्योंकि हम कोविड एरा से बाहर निकल चुके हैं, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि एग्जाम विल गेट बैक टू इट्स नॉर्मल पैटर्न। पहले हमेशा एग्जाम मई के मंथ्स में होता था, फर्स्ट वीक, फर्स्ट संडे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2023 में एग्जाम मई में होगा। और अगर ऐसा है बच्चों, तो प्लीज दिस इज न्यूज फॉर यू, हमारे पास सिर्फ 9 महीने रह जाते हैं। अगर हमारे पास 9 महीने हैं और 11वीं 12वीं का सिलेबस है, ये मैं ड्रॉपर्स के लिए एक्सक्लूसिवली बोल रही हूँ, तो हमें बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की रेस है ना? जैसे कि आप देख सकते हो, एक ही दिशा में भागना है, और जो भी चीजें उस दिशा से मुझे लेफ्ट राइट लेकर जाती हैं, उस सबको सैक्रिफाइस करना है, मेरा ये जवाब रहेगा। अब वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बनती है और वो स्ट्रेट लाइन में आपको नहीं लेके जाती है। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, हो सकता है आपको फैमिली से भी कट कर पढ़ना पड़े, हो सकता है आपको पूरी दुनिया से अपने आप को काट कर ये 9 महीने एक एक मिनट कीमती समझते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ना पड़े, क्योंकि सिलेबस 2 साल का है, कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं और महीने सिर्फ 9 हैं। इस बिल्कुल दौरान सही ये कहा मैम आपने, बिल्कुल सही कहा पंखुड़ी मैम। बहुत से बच्चों का मैम ये भी एक सवाल होता है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे गलती क्या हुई। तैयारी तो बहुत अच्छे से करी थी, कोचिंग भी ली थी, ऑनलाइन भी सपोर्ट लिया, प्रैक्टिस टेस्ट भी करे, बड़ी मेहनत करी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी हमने पढ़ा, पर गलती कहाँ रह गई हम ये नहीं जान पाए। तो पंखुड़ी मैम, मैं ये चाहूंगा कि बच्चों को ये भी बताया जाए कि क्या क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ने कमिट करी जिन्हें कि दोबारा ना दोहराया जाए। एब्सोल्युटली। तो अक्सर जब ये हम फेलियर से गुजरते हैं लाइफ में, जब हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, वो एक टाइम होता है जिसमें हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, यार मुझसे क्या गलती हो गई, काश मैं ऐसा कर लेती, काश मैं ऐसा कर लेता। तो पहले ये जानना जरूरी है कि अपने आप को गलत ना ठहराएं, है ना? ये आपके लिए कमबैक है, अपने आप को फेलियर ना समझें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत तो की थी, लेकिन सही डायरेक्शन में या सही टीचर के साथ जुड़कर या सही जगह पर नहीं की थी। ऐसा हो सकता है कि आपने तैयारी की हो, लेकिन एंड के कुछ मंथ्स में आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, या ऐसा हो सकता है कि मैम मैंने सब बुक्स से पढ़ लिया लेकिन हमने एनसीईआरटी तो पढ़ी ही नहीं, या हम कहीं ऐसी जगह पढ़ रहे थे जहां पे सिलेबस तो पूरा हो गया लेकिन किसी ने हमें एनसीईआरटी डिकोड करके नहीं दी, या हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन मैम हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की थोड़ी कम करी और हमारे लिए हमसे फिजिक्स की कैलकुलेशन नहीं हुई या बायो की कैलकुलेशन नहीं हुई। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइम मैनेजमेंट में पीछे रह गए। तो अपने अंदर जो मेहनती इंसान है, जो मेहनती स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, उस पर विश्वास रखें, दैट पर्सन एग्जिस्ट्स विद इन यू, है ना? और वो आपको इस फेलियर को चेंज करके इसको अपॉर्चुनिटी बनाए और आपकी सिलेक्शन होगी। लेकिन we have to improve those mistakes by connecting ourselves to a mentor, to a teacher, to the right platform, है ना? जो हमारी बिल्कुल सारी सही कहा मैम गलतियां। आपने, बिल्कुल सही कहा। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि हर इंसान को सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि उसने गलतियां क्या करी। मैं चाहूंगा कि इस वेबिनार को अटेंड करते समय अपने साथ एक कागज कलम जरूर लेकर के बैठिए, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताने वाले हैं जो शायद आने वाला जीवन बदल दे। सबसे पहली और अहम बात जो है हम लोगों ने आपसे ये कही, हाउ सीरियस आर यू फॉर योर गोल, है ना?
क्या सिर्फ आपका ये पैशन है या आप इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं? बड़े कम लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी में उनका पैशन उनके प्रोफेशन के रूप में मिल पाता है। सो ये चीज क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि हम कितना सीरियस है अपने गोल के लिए। एंड पॉइंट नंबर 2, कि क्या क्या हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सुख, चैन, नींद, आराम, दोस्ती, यारी, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और तीसरी बात ये कि क्या क्या गलतियां जो हैं आप कर चुके हैं या कर रहे हैं और उन गलतियों को दोहराना नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट बातें अभी तक हो चुकी हैं। बीच बीच में जरा मैं आपके क्वेश्चंस भी लेना चाहूंगा। भारत ने ये पूछा है कि मुझे बायोलॉजी में ईयर्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज याद नहीं होती। बेटा देखो, मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं एक स्टूडेंट था तो मेरे पास एक सिंपल तरीका होता था। मेरा सबसे सच्चा दोस्त, और सबसे सच्चा दोस्त मेरा ये था, ये कलम, ये पेन जो मेरे हाथ में है, और एक कागज। कागज और कलम यानी कॉपी और पेन आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मैं अपने दिल की सारी बातें वहां पे लिख दिया करता था। कहने का मतलब है, जो मुझसे नहीं हो रहा याद, जो ईयर याद नहीं हो रहा, साइंटिस्ट का नाम याद नहीं हो रहा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, उसे लिखिए। एक बार नहीं, बार बार लिखिए। कई टर्म्स बड़ी डिफिकल्ट है बायोलॉजी में, आई अंडरस्टैंड। लिखो ना, लिख के याद होगी। ह्यूमन ब्रेन की कितनी एबिलिटीज हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है इस चीज का। बस उन्हें एक्सप्लोर कीजिए। आपके पास सिर्फ 5 सेंसेस नहीं है। सिर्फ देखना, सूंघना, सुनना, महसूस करना और टेस्ट करना, इन सेंसेस के अलावा भी आपके पास बहुत सारी सेंसेस हैं। उन्हें एक्सप्लोर करिए, राइट? जब आप उन्हें एक्सप्लोर कर लेंगे, आप स्वयं ये चीज जान पाएंगे कि आप अब पहले से एक बेहतरीन इंसान बन चुके हैं। आयुष कुमार ने कहा है, जी मेरा स्कोर बहुत आ रहा है 20T3 में, बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए एम्स कॉलेज बताइए। शायद आप अपना क्वेश्चन बहुत क्लियरली नहीं लिख पाए बेटा। देखिए, टारगेट अपना एम्स रख के चलिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, है ना। जो आपका सपना होता है ना, मैं ये कहूंगा कि आप अपने स्टडी टेबल के सामने एक तस्वीर लगा लीजिए, वहां पे लिखा हो एम्स दिल्ली। रोजाना सुबह उठ करके उसे देखिए, रात को सोते समय देखिए, और ठान लीजिए कि मेरा टारगेट, मेरा मकसद यही है, मुझे एक दिन यहां पे पहुंचना ही है, और हर हाल में पहुंचना है। पूरे कायनात की एनर्जी जुट जाएगी आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए। पंखुड़ी मैम, कुछ बच्चों का यह सवाल है कि 11वीं और 12वीं के सिलेबस को एक साथ कैसे लेकर के चलिए। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करें। एब्सोल्युटली, मैं बहुत क्वेश्चंस पढ़ पा रही हूँ सेम तरीके के। शिवानी सिंह ने एक क्वेश्चन पूछा है सेम लाइन पर, सर ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, मैं कैसे करूं, टाइम टेबल बता दीजिए। शिवानी, इसीलिए सर और मैं यहाँ पर हैं। अगर आप आकाश बायजूस नीट चैनल पर देखोगे तो टीचर्स आपको टाइम टेबल भी बना के दे रहे हैं। मैंने एक पर्सनल टाइम टेबल अपने ड्रॉपर्स बैच के लिए बनाकर दिया है। जो बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, दे आर रियली रियली बेनिफिटेड। प्लीज विजिट द चैनल, इट इज टेकन केयर ऑफ। और सर, ये जो डाउट है 11th और 12th का, तो यू आर एट द राइट प्लेस एंड मीटिंग द राइट पीपल, यू आर इन द राइट हैंड्स। 11th और 12th का सिलेबस पैरेलली करना बहुत जरूरी है ड्रॉपर्स के लिए। आई से इट अगेन एंड अगेन। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि 12वीं का सिलेबस पहले कर लेते हैं, 11वीं को बाद के लिए छोड़ देते हैं, 11वीं का पहले कर लेते हैं 12वीं। इफ यू आर अ ड्रॉपर तो दोनों सिलेबस पैरेलल कीजिए, जैसे हम आकाश बायजूस नीट में ड्रॉपर्स बैच पर भी पढ़ाते हैं। सर और मैं बॉटनी जूलॉजी पढ़ाते हैं। पैरेलली 11th-12th का सिलेबस कीजिए, टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपका अगर एक दिन 11वीं का चैप्टर है और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो अगले दिन 12वीं का चैप्टर है और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सो ओवर टू यू बिल्कुल सर। मैम, एक कई बच्चों का सवाल आ रहा है बेटा कि मैं ड्रॉप तो करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, क्या मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए। देखो, अब इस सवाल को ना मैं बड़े इत्मीनान से समझा रहा हूं आपको। पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये होता है कि भाई हम नीट 2023 देंगे अगले साल, बट रिस्क नहीं लेना चाहते। भाई ना हुआ सिलेक्शन तो क्या करेंगे, तो चलो कोई ना कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, साथ में कोई छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा और नीट की तैयारी भी कर लेंगे। अब आप ये देखिए, आप ये तो कह रहे हैं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता या रिस्क नहीं लेना चाहती, कि केवल मैं नीट 2023 पे डिपेंडेंट रहूं, पर इसके साथ साथ आप अपनी काबिलियत पर भी तो शक कर रहे हैं ना। आपने अपने सक्सेसफुल होने की संभावना को भी तो घटा दिया, आपने वहां भी तो कम आंका है ना अपने आप को। नीट का एग्जाम इतना भी आसान नहीं है बेटा कि आप और बहुत सारे काम करते हुए इस परीक्षा को क्लियर कर जाएं।
होते हैं, एक्सेप्शनल लोग भी होते हैं, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन बेटा हर इंसान तो एक्सेप्शनल नहीं हो सकता ना। सो अगर मेरे से कोई सलाह ले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर ठान लिया तो ठान लिया, अगर आपका मकसद है कि मैंने नीट 2023 में एक बेहतरीन रैंक लाके एक टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस डिग्री करनी है, तो भाई फिर ये जरूरी है कि ड्रॉप लीजिए सिंसियरली, अपने आप को मौका दीजिए, कम मत आंकिए अपने आप को। गिव योर सेल्फ दिस गोल्डन चांस। मान लीजिए कि जो गलतियां हो गई सो हो गई, दोबारा वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। मैं एक सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अब मैं तैयारी करूंगा या तैयारी करूंगी। प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। मन में सवाल होंगे, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, यूट्यूब पे पढ़ें, क्या केवल यूट्यूब पे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, सेशन के एंड तक आपको बना रहना होगा। पंखुड़ी मैम के पास भी बहुत सारे सवाल हैं इस समय, तो मैं चाहूंगा कि मैम अगला क्वेश्चन बच्चों का आप एड्रेस कीजिए। सर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने सीरियस हैं, कितनी मासूमियत से आप अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी नाइस। इस आग को, इस डिटर्मिनेशन को, इस जुनून को जरूर बनाकर रखिए। और फिर आकाश बायजूस प्लेटफॉर्म तो है ही, टीचर्स तो हैं ही। जैसे कि कोमल केदार ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मुझसे जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते। फिर हमारे एक बच्चे ने पूछा है कि फिजिक्स में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत प्यारे प्यारे सवाल है कोमल, चाहे वो जेनेटिक्स है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स है बेटा, उसके न्यूमेरिकल्स है। मैं कह रही हूँ पूरी बायो के लिए जितने क्वेश्चंस निकालोगे उतने चमकते जाओगे। सर मैंने काफी स्टूडेंट से नीट 2022 के बाद बात की, कुछ हमसे जो पढ़े हुए थे, कुछ हमसे नहीं पढ़ रहे थे। सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम थी कि यार सिलेबस तो हमने पढ़ लिया, 2 साल का खत्म कर लिया, लेकिन हमने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए। तो ये सबसे बड़ी एक अच्छे बच्चे की भी यही एक कमी रह जाती है। तो जितना, ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर आपको 20 बार भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिलता है कोमल एंड अदर्स हु हैव द सेम क्वेरी, भाई सॉल्व करते जाइए, अटैक करिए क्वेश्चन को। तो जब वो आपकी अटैकिंग टेंडेंसी बन जाएगी ना, लाइक अ सोल्जर दैट शूट द क्वेश्चन, देन यू विल बिकम अ रैंकर। और जहां तक एनसीईआरटी की बात है बच्चों, तो चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आज इस वेबिनार के बाद जैसे कि सचिन सर ने बोला, वहीं पर टेबल पर है ना एक चीज पेस्ट कर लीजिए कि एनसीईआरटी इज द बाइबल। यस, एनसीईआरटी ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। उसको रोज पूजा करनी है हमें। बिल्कुल जी। मोहम्मद सैयन एंड भरत पाल ने ये सवाल पूछा है कि सर हमें एक इफेक्टिव प्लान बता दीजिए, एक फूल प्रूफ प्लान बता दीजिए कि जिससे हम 650 से ज्यादा नंबर ला पाए। अच्छा पहले आप ये देखो भैया, 650 मार्क्स, आज से अगर मैं कुछ साल पीछे चला जाऊं, 550 नंबर भी आ जाते थे तो भी सिलेक्शन होता था, 600 पे भी हो जाता था। भाई ऐसा क्यों है कि हर साल ये चीज बढ़ती ही जा रही है? सोचिए जरा ऐसा क्यों है? अवेयरनेस, लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा बड़ा है बेटा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से अब हर घर में, भारत के कोने कोने में ये जानकारी पहुंच चुकी है कि यदि आप एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं, सो मेडिकल फील्ड एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है जिसके लिए नीट रूपी परीक्षा होती है और इस परीक्षा की तैयारी ऐसे की जाती है। लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे। लगभग 18,72,000 के करीब कैंडिडेट्स ने इस साल एग्जाम दिया। एज लिमिट, अपर एज लिमिट भी खत्म कर दी गई है ना? अगले साल हम उम्मीद कर रहे हैं इससे भी ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे। सो मेरिट भी उसी हिसाब से चेंज हो रही है। सो इसका मतलब है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों जरूरी है। 9-10 महीने का जो भी समय हमें मिल रहा है उसी में प्लान करना है कि 11th का सिलेबस कैसे करना है, 12th का सिलेबस कैसे करना है, क्या हमें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं। हम तो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, हमने तो पिछले साल सारे नोट्स बनाए हुए थे, क्या मैं दोबारा बैठ करके नोट्स बनाऊं या उन्हीं नोट्स में से मेन मेन चीजों को हाईलाइट करना है, या मुझे कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्या उसी टेस्ट सीरीज के भरोसे काम हो जाएगा? वेल, सारे सवालों के जवाब मिलने हैं। सेशन के एंड तक आपने बने रहना है।
हमने एक इफेक्टिव प्लान आपको बताना है जिसके जरिए आप 650 से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली और अहम बात, बिलीव, फर्स्ट यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन अचीव। यदि आप इस बात का भरोसा ही नहीं रखेंगे कि आप किसी चीज को हासिल कर सकते हैं, तो फिर आप हासिल करेंगे कैसे? सपने में और लक्ष्य में, सपने में और लक्ष्य में एक मुख्य अंतर ये होता है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य पूरा करने के लिए बिना नींद की मेहनत। समझा ये बात? एक ही सिंगल सेंटेंस में बता रहा हूं। डॉक्टर पंखुड़ी, आप भी एग्री करेंगे मुझसे कि पहले बिलीव करना पड़ता है तभी अचीव हो पाता है। बिल्कुल सर। बहुत सारे बच्चों को, एक बच्चे ने डाउट लिखा है, नाम नहीं लिखा है उन्होंने, कि अगर मैं ड्रॉप ले लूंगा तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। बेटा देखो, पीछे और आगे का जो आइडिया होता है कि मैं आगे बढ़ गया पीछे बढ़ गया, इन द बिगनेस ऑफ लाइफ, जब आज से कुछ साल बाद आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहे होगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या आपने एक साल ड्रॉप किया था उस साल, लेकिन मैं तो उसी साल कॉलेज में आ गया था। तो थोड़ा समझो कि गोल कितना बड़ा है, उसके सामने अगर आप जिंदगी के 9-10 महीने एक्स्ट्रा लगा दोगे, ट्रस्ट मी बेटा, इट इज वर्थ इट। अपने आप को किसी से भी कम ना समझें। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें फेलियर लगता है, उस साल जो कॉलेज अगर मिलता भी, मान लो इस साल आपकी सिलेक्शन हो जाती, जो कॉलेज मिलता, अगर आप ड्रॉप कर लोगे, अगले साल आपका स्कोर और रैंक इतना ऊंचा होगा कि that will be the best college of the country। तो फेलियर एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कई बार बन जाता है, बिल्कुल ऐसा ना समझे। अपने आप में विश्वास रखें कि मेरे अंदर, जैसा कि मैंने बोला, मेरे अंदर वो इंसान है जो शायद अभी कुछ देर के लिए फेल हो गया इस एक एग्जाम में, लेकिन वो मेहनत कर सकता है, वो बिल्कुल जीत सकता है। ये रेस सबके लिए कॉमन है और ऐसा कोई बच्चा नहीं है इस कंट्री में, द वे दिस एग्जाम इज डिजाइंड, ऐसा कोई बच्चा नहीं है इस कंट्री में जो ठान ले और वो नहीं कर सकता है। This बिल्कुल exam जी। is the most prestigious and one of the most difficult exam of this country। वो मानने वाली बात है, because number of seats और number of candidates का रेशियो थोड़ा सा कम रह जाता है। राइट राइट। आप देख पा रहे होंगे बेटा कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। सन 2018 में अगर लगभग 13.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 2019 में वो 15 लाख से बढ़ गए, 2020 में 16 लाख, 2021 में 16.25 लाख और 18,72,000 इस साल। तो न जाने अगले साल क्या हो जाएगा। अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, घर घर में ये जानकारी है कि बेहतरीन डॉक्टर बनने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। भाई अब सवाल ये उठता है कि प्रक्रिया तो पता चल गई कि नीट की तैयारी करनी पड़ती है, परंतु करे कैसे? डिंपल मोदी ने एक सवाल पूछा है कि स्कूल और नीट मॉड्यूल्स जो हैं, बहुत से बच्चे हमारे आकाश बायजूस के मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, तो बच्चों का ये सवाल है, पर्टिकुलरली डिंपल मोदी के क्वेश्चन पे मैं इस समय फोकस कर रहा हूं कि स्कूल को और मैं अपनी नीट की तैयारी को कैसे मैनेज करूं। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए बेटा कि ये कोई दोनों बिल्कुल सेपरेट चीजें नहीं है ना। सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, बायोलॉजी से एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आप सीबीएसई लेवल के लिए, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, इस समय पूरे भारत से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, सबका स्टेट बोर्ड अलग अलग हो सकता है ना। जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो बदल नहीं जाएंगे। फर्क इतना हो जाता है कि स्कूल एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, नीट एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। एक प्रश्न है आपके सामने, 4 उत्तर हैं, उसमें से टिक करने। तो आपको अपने आप को दोनों चीजों के लिए ढालना होगा कि सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस, लेक्चर्स अटेंड कीजिए यूट्यूब पे। आप हमारे आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल को आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं भी करा है चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। जब हम ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाते हैं नीट की, आपको साथ के साथ सब्जेक्टिव अप्रोच भी बताते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा रहा हूं, सो आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म आल्सो। सो जो बच्चे 12th क्लास में हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं इस समय जो 12th क्लास वाले जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये क्लियर कर दूं बेटा, फर्क केवल इतना है आंसर राइटिंग टेक्निक में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। तो मैनेज तो करना पड़ेगा, जीवन में कुछ अलग करने का ठाना है तो फिर भैया मेहनत भी अलग करनी ही होगी, है ना। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे जस्ट डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो बस यही करना है आपको कि चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करके चलना है। पंखुड़ी मैम, जितने भी सवाल इस समय आ रहे हैं ना, अगर मैं एक नटशेल में फ्रेम करूं
तो वो स्क्रीन पे मुझे कुछ इस तरह से नजर आएंगे। मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार सब बच्चों को पढ़ के सुना दीजिए कि इन जनरल इनके माइंड में इस समय क्या चल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वेरी ब्यूटिफुली सेड। सबका निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हम डरे हुए हैं, 11th खराब हो गई है, 12th कैसे करें। कई बच्चों ने पूछा है कि ठीक है, सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़े ही कैसे। तो जैसे कि सर ने बताया कि मात्र सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं हो सकती, गोल बहुत बड़ा और स्पेशल है, डॉक्टर बनना है। तो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट्स राज की तरह लिखे हुए हैं, और वो डी कोडिंग ऑफ एनसीईआरटी है ना, उन राज का मतलब कैसे समझना है, उसके लिए आपको वो टीचर चाहिए जो आपको एनसीईआरटी को इन डेप्थ डाइसेक्शन करके समझाएं। हमारे आकाश बायजूस नीट चैनल पर हम एनसीईआरटी सीरीज अलग से करते हैं, जिसमें आपको एक एक लाइन से बताया जाता है। प्लीज एक्सप्लोर द चैनल। आप चैनल पर जाओगे, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से आपको बताया जा रहा है कि इस लाइन से इतनी तरह के क्वेश्चन या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इस एक पैराग्राफ से 20-30 क्वेश्चन बना के आपको उसी वक्त दे दिए जाते हैं। तो वो जो सारे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है का सवाल कर रहे हैं, लाइक आई सेड, यू आर एट द राइट प्लेस, मीटिंग द राइट पीपल, है ना। सो व्हेन यू आर इन द राइट हैंड्स, जब आपका हाथ सही टीचर्स पकड़ लेते हैं, सही प्लेटफॉर्म पकड़ लेता है, तो आधे से ज्यादा सवाल जो सर हमें दिख रहे हैं वो मुझे सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों के। लेकिन बस अब आपको हमसे जुड़ना है। एवरीथिंग इज गिवन टू यू राइट हियर। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैम, बहुत से बच्चों का सवाल CUET से रिलेटेड है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत राइट। बच्चे पैनिक कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि क्या आने वाले समय में नीट एग्जाम भी इसके साथ मर्ज हो जाएगा, कैसा होगा। वेल बेटा, खबर जरूर कुछ दिन पहले इस तरह की आई थी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है। लेकिन कंक्रीट अभी इसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा ही कठिन है, बिकॉज दोनों एग्जाम्स जो है ना, अलग तरह की चीज को चेक कर रहे हैं बच्चों में, जेनरलाइज कर देना। और उसके बाद आप ये सोचिए कि CUET, नीट, JEE इस सब को मिला दिया जाए तो कितने कैंडिडेट्स होंगे। शायद ये 40-45 लाख की संख्या को पार कर जाएं। क्या ये संभव हो पाएगा किसी भी गवर्निंग अथॉरिटी के लिए, इतने ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का एग्जाम करवा पाना एक दिन में? क्या ये एग्जाम साल में 2 बार होना चाहिए? So I mean, there are lot many questions and it is too early to say anything about this. हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, इस तरह के वेबिनार्स हम आपके साथ पीरियोडिकली करते रहेंगे, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है। सभी ऑथेंटिक सवाल जो आपके होंगे उनके ऑथेंटिक जवाब लेने के लिए तो सबसे पहले तो जो हमारा आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेटा। जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है रिलेटेड टू एकेडमिक्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू नीट एग्जाम, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्टेट बोर्ड एग्जाम, CUET, हम हर किसी के लिए सेशन लेकर के आते हैं। लाइव सेशंस होते हैं जिससे कि आप तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ओवर टू यू पंखुरी मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ये भी कहना चाहूंगी बच्चों आपसे कि ये जो क्यूएट का न्यूज है ना, मानने वाली बात है कि ये बड़ी न्यूज है, लेकिन उससे ना सिलेबस नहीं बदलता है। एक जेई का बच्चा अगर आईआईटी में जाने का सपना रखता है, उसको सिलेबस तो बेटा वही पढ़ना पड़ेगा। जिसको डॉक्टर बनना है उसका सिलेबस वही होगा। तो ऐसी न्यूज से कंफ्यूज ना हो, अपना टाइम ना वेस्ट करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, बस बढ़ते जाएं। एग्जाम का नाम बदल सकता है, एग्जाम करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन सिलेबस सेम रहेगा। तो जो वेपन्स हैं लड़ाई लड़ने के, वो हमें बना के रखने हैं, वो हमें शार्प करते रहने हैं। लड़ाई कैसी भी हो लड़ लेंगे, राइट। तो बेटा अब ना बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं कि हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या टाइम टेबल फॉलो करें, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मेरा ये जवाब रहेगा इसको कि घंटे कितना पढ़ना चाहिए, स्ट्रैटेजी कितनी कैसी फॉलो करनी चाहिए, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करती है। लेकिन हाँ, आपको एक टीचर अगर स्ट्रैटेजी बता दे कि बेटा इतने घंटे पढ़ो, ये टाइम टेबल बनाओ, ये आपकी प्री प्रेपरेशन स्टेज, प्रेपरेशन जब आप स्टार्ट करते हो, अब आपके पास 8-9 महीने हैं, तो इट विल रियली हेल्प यू। उससे हमारी 80-90% तैयारी हो जाती है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस में ये मालूम नहीं है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है।
तो भाई मैं पक्का कर लूं कि मुझे जेनेटिक्स सबसे पहले करनी है अपने सिलेबस में, मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी जोलॉजी वाले पोर्शन में से सबसे पहले वो निपटाना ही निपटाना है। कहीं मैं लिविंग वर्ल्ड को उतना टाइम ना दे दूं जितना मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी को पूरी को देना है। सो यू शुड बी वेरी वेरी फेमिलियर एंड अपडेटेड विद द सिलेबस। आकाश बायजूस नीट चैनल पर हर हफ्ते हर रोज आपको टीचर्स रिमाइंड करवाते हैं कि बेटा ये चैप्टर वेटेज है, विद द नंबर्स, विद द डेटा, विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसीलिए आई विल कम बैक टू द पॉइंट कि 360 डिग्री प्रिपरेशन करने के लिए ना सही प्लेटफॉर्म जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। अगर मेरा फिजिक्स वीक है तो मैं आज संडे के दिन 6 घंटे फिजिक्स पे लगा दूं और बाकी टाइम Sunday I repair the damage which is there in my preparation. Suppose physics से मेरा डैमेज हुआ है नीट 2022 में, है ना, और अगर 12th और 11th के चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, ये सर और मैं उस दिन बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी बच्चे को सेल डिविजन नहीं समझ में आया है तो वो जेनेटिक्स कैसे समझेगा, है ना। तो कनेक्शन हो गया ना। तो चैनल पे आपको दिखेगा कि अगर मैं एक क्लास में सेल डिवीजन पढ़ा रही हूँ तो वही 6 बजे 7 बजे सचिन सर जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू द राइट प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। ओवर टू यू सचिन। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जैक है एक स्टूडेंट हमारे, जैक ने ये सवाल पूछा है कि मुझे बार बार जिंदगी में यही थॉट्स आते रहते हैं कि मैंने जीवन में कुछ विशेष नहीं करा और मैं जीवन में बहुत पीछे रह गया। ओके, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा बेटा कि जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कभी भी कमजोर मत समझना अपने आप को। कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि सूरज की तपिश से कभी समंदर सूखा नहीं करते। समझे आप बात? लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें फेलियर्स का सामना भी करना पड़ता है। नो वन इज एन एक्सेप्शन। मैं, आप या कोई भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। हम सबको जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, नन्ही चींटी दाना लेकर के दीवारों पे चढ़ती है, टेढ़ी मेढ़ी दीवारों से 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो यू हैव टू ट्राई। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन डू इट, then you have to sort out the mistakes which you have committed in the past, वो फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। Join an authentic proven platform, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए जिसने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिया है। और मैं गर्व के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आप उस सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। राइट, एक कदम आपने बढ़ा लिया। आज आप सब ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके अंदर वो स्पार्क है ना, आप करना चाहते हैं ना जीवन में कुछ बेहतरीन। अदरवाइज क्यों आप ये 1 आवर हमारे साथ बिताते? सो दिस इज वेरी क्लियर दैट यू हैव दिस थिंग इन यू। चिंगारी आपके अंदर है, बस उसे भड़काने वाले चाहिए। मतलब हीरा तो आप हैं, बस हमें आपको तराशना है। हमारे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है। आप एक्सप्लोर कीजिए। आकाश बायजूस के बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको बेहतरीन लग रहा है, देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस जहां पे एक स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस देखता है। हो सकता है कि कोई फिजिकल प्लेटफॉर्म जो है आपके घर से बहुत दूर है, आप वहां तक जा नहीं सकते, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी परेशानियां हैं, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो जाती है। जैसा कि डॉक्टर पंखुरे ने कहा कि कोई एक जनरलाइज्ड स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती सबके लिए। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर हैं जो ओवर द इयर्स एंड इयर्स प्रूवन है कि भाई ये तो होना ही चाहिए। उसके अलावा निर्भर करता है, भाई किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, किसी को रात में पढ़ना पसंद है। हो सकता है कि किसी घर में रात में शांतिपूर्वक माहौल हो तो वो तभी पढ़ सकता है, किसी के घर में दिन में शांतिपूर्वक माहौल हो तो वो तभी पढ़ेगा। तो बेटा आप इसे जनरलाइज मत करिए कि XYZ टॉपर तो केवल सुबह तड़के 4 बजे उठ के पढ़ते थे, उनका इसलिए सिलेक्शन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं अपने जीवन काल में कभी भी रात को नहीं पढ़ पाया, मुझे तो 9 बजे ही नींद आ जाती थी। राइट, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आप मेरा एग्जांपल ले लीजिएगा, बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके ये ढूंढना पड़ेगा कि किन सिचुएशंस में आप बेस्ट आउटपुट दे पा रहे हैं। मैम कुछ आगे की स्ट्रेटेजी बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए।
बिल्कुल सर, मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है सर कि बायो 2022 में नीट में बायो काफी कॉन्सेप्चुअल थी, कॉन्सेप्ट्स वर इंटरवाइंड. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द एक्सटेंट ऑफ गोइंग बियॉन्ड एनसीईआरटी? नाउ माय डियर, नाम मेंशन नहीं है, क्वाइट अ नाइस डाउट. देखो, एनसीईआरटी इज द ब्रिक ऑफ दिस वॉल. एनसीईआरटी इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं थे एंड दे हैव वेंट बियॉन्ड एनसीईआरटी, they could not be successful on the final day, and such students are surprised the maximum in this test who have done everything other than basics. It's like learning a dance form, it's like learning an art form, it's like learning how to write. You first learn the alphabets and then you start writing poems or essays. So if you want to be good in any kind of exam, whatever happens tomorrow, difficult or not difficult, I can assure you any kind of question might look like outside NCERT, but the concept which is behind the question is going to be derived from NCERT, because NTA के पास ये guidelines हैं that they cannot go beyond NCERT in terms of concepts. अगर आप फिर भी बोल रहे हो कि how do we approach those questions जो घुमा दिए गए हैं, intertwined है, like you rightly said, जिसमें हमें देख के लगता है कि यार NCERT में it's not a direct line. So then the teacher comes in action, है ना? जैसे कि मैंने बोला NCERT सीरीज होती है चैनल पे या क्लासेस होती हैं, आप क्लासेस अटेंड करके देखिए, द टीचर विल टेल यू दिस कॉन्सेप्ट has been asked like this or could be asked like this. So we are working on what has been and what could be. That is why you are with Akash Byju's NEET. That is why you are here today, because quality of preparation matters. तो देखो इसमें ना strategy cannot be black and white. There's a lot that you have to do. So like in a operation theater. तो आगे की स्ट्रैटेजी में ध्यान रखिए कि अगर आपको सिलेबस भी पता लग गया है, कई बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि 12th और 11th को साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपेयर करें. तो अगर आप 12th में स्कूल जा रहे हो तो सैटरडे संडे मेक इट अ पॉइंट कि आप हफ्ते में एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का 11th का क्विकली एनसीईआरटी से ब्रश अप कर रहे हो. ये मैं कभी नहीं कहूंगी कि यू कैन ओनली टेक 12th का सिलेबस अकेले या 11th का सिलेबस अकेले. मेरा पर्सनल सजेशन है कि 11th 12th has to be done simultaneously and it can be done with the help of a timetable. आकाश बायजूस नीट चैनल पर 11th और 12th की सीरीज रेगुलर चलती है मंडे टू फ्राइडे, तो वो फायदेमंद बात है. आप अपना टाइम टेबल आकाश बायजूस नीट की क्लासेस के साथ अलाइन कर सकते हो कि आज मेरी 11th की क्लास है, आज मेरी 12th की क्लास. ओवर टू यू सर. बिल्कुल जी मैम. एक और अहम सवाल जो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं वो ये है कि भाई हम नोट्स कैसे बनाएं. अच्छा, वैसे क्या नोट्स बनाने के लिए कोई जादू की छड़ी चाहिए होती है बेटा? ऐसा तो कुछ नहीं होता. अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, जिन्हें हम रिपीटर भी कह देते हैं, तो आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस और डेफिनेशंस वाले नोट्स की जरूरत ही नहीं है. आपको ये लिखना थोड़ी जरूरी है मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन द बॉडी, इट इंक्लूड्स एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म. नो, आपको ये जरूरत नहीं है. आपके नोट्स की पॉइंट्स होने चाहिए. मैं तो ये कहूंगा इतने खूबसूरत होने चाहिए कि एक पेज में, आगे पीछे लगा लिया हमने, एक पेज में एक चैप्टर खत्म हो जाए. इतने ब्यूटीफुल तरीके से उन्हें डिजाइन कीजिए. मेन मेन पॉइंट्स लिखिए. सबसे पहले जब आप शुरू करते हैं, सपोज ये देखिए मेरे हाथ में ये कागज है ना, नोट्स बनाए मैंने, आज तक भी बनाता हूं नोट्स. कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड हो, कोरोना से रिलेटेड हो, अब टोमेटो फ्लू भी आ रहा है, इससे रिलेटेड भी मैं न्यूज पढ़ के नोट्स बना लेता हूं. सबसे पहले एक माइंड मैप की तरह तैयार कर लीजिए. सपोज लिविंग वर्ल्ड एग्जाम चैप्टर है, सबसे पहला मैंने हेडिंग दिया लिविंग वर्ल्ड, और उसके मैंने नीचे 4 बॉक्सेस बना दिए कि इसमें 4 मेन बातें क्या इंक्लूडेड है. सबसे पहले डिफाइंड है लिविंग. नंबर 2 पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल एड्स. 4 बातें हैं जो मुझे इसमें से पढ़नी है. मेरे दिमाग में पूरे चैप्टर का फ्रेमवर्क होना चाहिए. राइट जी. की पॉइंट्स, मेन मेन बातें. कलर्स का यूज कीजिए. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं यूज डिफरेंट कलर्स व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स. राइट. रेड कलर, ग्रीन, ब्लू, जितने आप हैंडल कर पाए, है ना. ये नहीं कि 15-20 कलर्स के पेन को ही हैंडल करने में टाइम वेस्ट कर दिया. जितने कलर्स आप हैंडल कर सकते हैं उनसे आप नोट्स बनाइए. हमारा ब्रेन कलर्स को बहुत बेहतर तरीके से याद रखता है. डायग्राम्स खुद बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, लेकिन कम से कम पन्ने इस्तेमाल करते हुए. योर नोट्स शुड नॉट बी लाइक अ ह्यूज ग्रंथ आप लिख डालें, बाद में वो रिवाइज नहीं हो पाएंगे, है ना. लेकिन अगर आप 12वीं क्लास में हैं,
तो स्ट्रेटेजी डिफर कर जाएगी। मैंने कहा ना 12th वाले जो बच्चे हैं भाई, उनको 2023 में 12th का बोर्ड एग्जाम भी देने हैं, तो बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव चीजें पूछी जाएंगी, वहां डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, डिफाइन द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, व्हाट इज इवोल्यूशन, एक्सप्लेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो वहां पे सब्जेक्टिव आंसर्स आपके तैयार होने चाहिए, फर्क पड़ जाएगा, है ना। 12th स्टडिंग है या 12th पास है। 12th पास वाले बच्चों को बहुत इलेबोरेट डिटेल्ड नोट्स नहीं चाहिए, आपके पास की पॉइंट्स होने चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है, और क्वालिटी क्वेश्चंस। मार्केट में अनलिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, आपने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर तरह के सोशल मीडिया पे जहां देखेंगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन। प्लीज प्लीज डू नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू दैट। व्हाट नॉट टू स्टडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्या नहीं पढ़ना है वो भी बड़ा जरूरी होता है फिल्टर आउट करना। मैं यहां पे दावे के साथ आपको ये कह पाऊंगा कि हमारी जो आकाश बायजूस की टेस्ट सीरीज है, आप ये जरूर ज्वाइन कीजिए, राइट। जिन टीचर्स के द्वारा, जिन अध्यापकों के द्वारा ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की जाती है ना बेटा, उनका इतने वर्षों का अनुभव है जितनी आपकी आयु भी नहीं है, आपकी उम्र से ज्यादा उनका अनुभव है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें अपनी जिंदगी को उसी के हाथों सौंपना चाहिए जिसने एक प्रूवन रिजल्ट दिया है। सो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारी। एंड एक और अहम बात मैं बताना चाहूंगा पंकुरी मैम, आप भी बच्चों को हमेशा बताती हैं, एंथे एग्जाम जो हमारा होता है आकाश बायजूस नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, राइट जी। ठीक है, अब कुछ रिवीजन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी पंकुरी मैम आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। बिल्कुल। तो सर रिवीजन की ये कीमत है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव आर वेरी हैबिट फॉर्मिंग एनिमल्स हैं हम, है ना। तो हम जो चीज बार बार करते हैं ना, फिर वो एफर्टलेसली होने लग जाती है। एग्जाम सेंटर में मेरे पास बायो का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड है। 30 से भी कम हो तो बेहतर है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस भी करनी है। अब वो प्रिसिशन, एक्यूरेसी और लिमिटेड टाइम में कैसे करना है, ये गेम है इस एग्जाम की। तो वो कैसे होगी, जब मैं बार बार कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग करूंगी। जब हम किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ फेस टू फेस आते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट को अपना पार्ट बनाने का, दैट आई नो दिस, जब हम पहली बार पढ़ते हैं समबडी एल्स नोज इट। क्लास में मैम आई, उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, वो मैम जानती हैं उस कॉन्सेप्ट को, या बुक से पढ़ा तो बुक लिखने वाला जानता है, और क्या आप जानते हो? तो आपके जानने के लिए कॉन्सेप्ट आपको रिविजन्स करनी पड़ेंगी, और जब आप रिविजन करते हो इट बिकम्स अ मेमोरी। यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू ब्रश योर टीथ, किसी को सिखाना नहीं पड़ता कि ऐसे ब्रश करना है। यू स्टार्ट टू लर्न, यू लर्न ड्राइविंग अ कार। शुरू में आपको किसी को बताना पड़ता है कि ऐसे ड्राइव करना है, फिर ऐसे ड्राइव करना है। यू लर्न टू स्विम, आपको बताना पड़ता है। बट कुछ टाइम बाद आप कुछ और सोच रहे होते हो, कर रहे होते हो, बट यू anyways drive the car, you anyways swim as soon as you are put into water. तो हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए बेटा बार बार ये रिविजन तो करनी पड़ेगी। रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे पास बच्चे बोलते हैं व्हाट इज द ट्रिक टू बिकम अ नीट रैंकर, आई से वन वर्ड, इट इज रिविजन। सर मेरे पास ना एक बहुत अच्छा डाउट आया है अभिषेक नायक का, आई विल जस्ट रीड इट। He says, esteemed mentors, this year was my first NEET attempt and I did not give my 100%. I want to appreciate Abhishek that you are acknowledging कि आपने अपनी मिस्टेक को जान लिया है कि आप 100% नहीं दे पाए। I have decided to take a year drop. Very good decision. My prime question regarding this is, shall this 1 year gap make any difference at the college? Shall there be any social hesitation with my peers over there? Now Abhishek, जब मैं सचिन सर would always agree to this, हम लोग ये भी बात डिस्कस करते हैं, like I said, it is not going to make a difference. जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, और ये मैं आपको अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, there were people who were 2-year drops, 3-year drops, but it does not make a difference when you are studying with them. मैं अपने बैच में मेरे सबसे यंग थी, मेरे से 2 साल 3 साल बड़े लोग भी थे, बट अल्टीमेटली इट इज दैट यू विल कम आउट बिकमिंग अ डॉक्टर, you will be a part of that noble profession. It is not going to make any difference, trust me. Nobody will ask you कि आपने drop किया 1 साल और you are a dropper. Stop calling yourself a dropper at all. So that is the answer, Abhishek. Over to you, sir.
regarding the time बिल्कुल बिल्कुल management? बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। रिवीजन को लेकर के बड़ी खूबसूरत बात आपने बोली। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बेटा जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मेरे भी मन में भी यही सवाल होता था। मैं टीचर से पूछता था मैम कैसे याद करें, कैसे याद होगा। तो उन्होंने एक तो कह दिया कि भाई लिख लिख के याद करो। तो चलो मैंने उनकी ये बात मानी और मुझे चीजें याद रहने लगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे टॉपर आना है, मेरे को आप मतलब आई कैनॉट सेटल फॉर समथिंग लेस। ऐसा नहीं, मुझे तो क्लास में टॉप 3 में रहना ही रहना है। मेरी जिद होती थी, एक सफलता प्राप्त करनी है, ये मेरी जिद थी। तो टीचर ने मुझे एक गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सचिन अगर जिंदगी में ऐसा चाहते हो ना, तो फिर एक बात सीख लो कि जो चीजें याद कर रहे हो ना, वो तुम्हारे दिमाग को नहीं, वो तुम्हारी उंगलियों को याद हो जानी चाहिए। है ना, सुनिए, दिमाग को नहीं उंगलियों को याद हो जाए। कि मतलब जैसे ही क्वेश्चन सामने आए, आपके फिंगर्स एकदम से बेताब हो जाए उसका आंसर देने के लिए। दैट्स व्हाट डॉक्टर पंकुरी हैज एम्फसाइज्ड, कि कोई चीज जब हम इतना अभ्यास कर लेते हैं ना, तो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह बन जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन तो आप समझते हैं ना, सुबह आप उठते हैं, ब्रश करना है, कहां पड़ा है ब्रश, कैसे करना है, देखना थोड़ी पड़ता है। इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। जूते के फीते बांधने, तस्मे बांधने, जूते की तरफ देखना नहीं है, अपने आप तस्मे बंध जाते हैं। है ना, टाइपिंग करनी है, अपने आप हो जाती है। एक बार सीख लिया, इतना अभ्यास हो गया उस चीज का कि अब वो एक रिफ्लेक्स सेक्शन बन चुका है। सो दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, कि ये एनसीईआरटी की लाइनें ना एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाए। अभी मेरे मुंह में इतना सवाल हो बस, कि क्या सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं या सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट हैं। मैं इतना बोलूं और आप पहले ही जवाब दे दे कि सर आप तो फाइलम कॉर्डाटा की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रोटोकॉर्डेट्स आते हैं, यूकॉर्डेट्स आते हैं, जिन्हें वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। समझा मेरी बात? सो अभ्यास कीजिए, लेकिन अभ्यास भी कहां करना है? एक सही शिक्षक के शरण में। राइट, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। यू हैव टू चूज योर ब्रेन। ह्यूमंस को क्या कहते हैं? होमोसेपियंस, वाइज मैन। इतने अकलमंद बनिए कि आप सही और गलत का चुनाव आयु के इस मुकाम पे जरूर कर पाए। है ना, अदरवाइज वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें वो मौका नहीं आने देना है। आज मैं और डॉक्टर पंकुरी मिगलानी आपके साथ लाइव है, भविष्य में भी हम आते रहेंगे। तो ये एक हैबिट बना लीजिए कि हमें सही लोगों से मिल करके पीरियोडिकली अच्छी बातें सीखते रहना है। एक चीज और बताना चाहूंगा, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आकाश बायजूस नीट ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे हम पीरियोडिकली अपने सभी लेक्चर्स की डिटेल्स, लेक्चर के लिंक्स, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि आपको स्वयं समय जो बिताना है ना, सेल्फ स्टडी में बिताना पड़े, नोट्स बनाने में भी आपका टाइम ना जाए, उसके भी पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, तैयार मिलते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम पे भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं पंकुड़ी मैम, मैं चाहूंगा कि आप उन बातों का भी जिक्र कर दीजिए। हालांकि हम भविष्य में भी करेंगे कि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है, उस समय माइंड सेट कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। अभी मेरे मन में एक ख्याल आया, आप में से जितने लोग ये सोच रहे हैं कि काश सचिन सर से रोज मिलने को मिल जाए, काश मैम हमारी इस बात का रोज ही जवाब दे दें, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मन में रोज सवाल आ रहे हैं। ये आपकी एज भी वैसी है और ये वक्त भी ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन और सवाल बनते हैं। तो इसीलिए आप रोज सर से मिल सकते हैं, रोज मुझसे मिल सकते हैं ऑन आकाश बायजूस नीट चैनल। हमारी तरफ से कोई भी हम ऐसा एफर्ट छोड़ेंगे ही नहीं, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगे कि आपको फील हो जाए कि आज सर मेरे साथ नहीं थे, आज मैम मेरे साथ नहीं थी। इसीलिए जैसा कि सर बोल रहे हैं कि वो हर प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो आकाश बायजूस से जुड़ा हुआ, जहां पर आपके प्यारे टीचर्स आपके साथ हों। जैसा कि सर ने बोला कि सिर्फ एक कदम ही काफी नहीं है, हर वो कदम जो हमें डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाता है वो बढ़ाना पड़ेगा, इतनी सी बात है। तो हमने ये जाना कि एग्जाम से पहले क्या जरूरी है। अच्छा, कई बच्चे, दिस इज स्पेशली बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड टू स्टूडेंट्स इन द एग्जाम सेंटर दिस टाइम। मैं सेंटर पर ही थी, आप लोगों ने देखा होगा, आई वेंट टू द सेंटर इन बैंगलोर और हमने बच्चों से बात करी। सबका एक ही दर्द था कि टाइम मैनेजमेंट वाज अ प्रॉब्लम। तो बेटा पहली बात, टाइम मैनेजमेंट कम्स टू यू विद प्रैक्टिस, है ना। जैसे हम ड्राइविंग जब सीखते हैं, ड्राइव करते रहते हैं, तो हमें पता लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो कैसे ड्राइव करना है, कम ट्रैफिक है हाईवे पे कैसे ड्राइव करना है, स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है, हाउ टू पार्क, हाउ टू एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, तभी तो वी आर एबल टू डू दैट जॉब ना।
तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत कीजिए, जैसे कि डॉक्टर सचिन ने कहा कि अगर टेस्ट्स नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एनसीईआरटी सही टीचर के साथ डिकोड नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। एग्जाम सेंटर में हमेशा हमेशा मेरा ये मानना है, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि बायोलॉजी से स्टार्ट कीजिए, है ना। हमेशा अपने क्वेश्चंस को बायोलॉजी से स्टार्ट कीजिए, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। और कई सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग में मार्क खा जाते हैं, जैसे कि इस बार बायो में हुआ। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे, जैसे कि मैंने बोला अटैक मोड, मैंने क्वेश्चन देखा, जैसे सर ने वर्टिब्रेट्स वाला एग्जांपल दिया, क्या मेरे पास क्वेश्चन पढ़ते जवाब आया दिमाग में? वाज इट अ रिफ्लेक्स एक्शन? If it was a reflex action, then I fill the OMR sheet. But if it was not, then I have to take a break because I don't want to lose 5 marks on a question. I don't want to go for negative marking. Negative marking मेरा दुश्मन है इस वक्त, इस लड़ाई में। तो ये एग्जाम सेंटर में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लॉकिंग इज वेरी नेसेसरी, कि भाई अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं निकल रहा है, तो उसी के पीछे नहीं पड़े हैं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है केमिस्ट्री का कोई पोर्शन या बायो का पोर्शन विल मेकअप फॉर दैट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, है ना। सो क्वेश्चंस को स्किप कीजिए, नेगेटिव मार्किंग से लड़ने की स्किल डेवलप कीजिए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बाद के लिए रखिए, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। डॉक्टर सचिन कपूर विद हिज अमेजिंग years of experience will help us to know more about this, sir. Please, your inputs on बिल्कुल this. मैम, एक सवाल ना बहुत से बच्चों का है कि इज यूट्यूब इनफ फॉर प्रेपरेशन? वेल, सुनो मेरी बात। क्या केवल यूट्यूब से पढ़ के कोई बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है? आपका मुख्य सवाल ये है। देखिए बेटा, नथिंग कैन रिप्लेस द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ टीचर। हाँ, यूट्यूब एक बहुत ही बेहतरीन एडिशनल टूल है उन बच्चों के लिए जो ऐसे दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहां पे कोई अच्छा फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है, उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। यूट्यूब उनके लिए एक बहुत बेहतरीन टूल है। अब सवाल ये आता है कि जो बच्चे फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेके पढ़ाई करना अफोर्ड कर सकते हैं, क्या उन्हें यूट्यूब देखना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा यस, डेफिनेटली देखना चाहिए, है ना। आप फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके पास एक एडिशनल टूल भी है साथ में, इन द सेंस कि आप जो कल पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है, सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम है, और वही चीज आपने पहले यूट्यूब पे मुझसे या किसी भी अच्छे बायोलॉजी टीचर से पढ़ ली। यहां ये भी बड़ा जरूरी है ना, बिकॉज यूट्यूब पे तो इतने लेक्चर्स फ्लड हो चुके हैं कि फिल्टर करना मुश्किल हो जाएगा। बट वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू कि अगर आप वो चैप्टर पहले पढ़ के चले जाते हैं तो क्लास में तो भाई आपकी वाह वाह हो जाएगी। जब हम देखेंगे कि सारे जवाब वहां पे करण दे रहे हैं, सारे जवाब अनिकेत ने दिए, साकेत ने दिए, तो कितना खुश होंगे आप सब लोग। सोच के देखिए इस चीज को। दूसरा, किसी कारणवश आप नहीं अटेंड कर पाए फिजिकल कोचिंग में क्लास, हो सकता है आप बीमार हो, घर में कोई मजबूरी, जिम्मेदारी, कुछ भी, तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन सोर्स होता है यूट्यूब पे एक अच्छे टीचर का लेक्चर अवेलेबल होना, है ना। सो फायदा तो है यूट्यूब का, देयर इज नो डाउट इन दैट, लेकिन बड़ा सेंसिबली यूज करना है। चक्कू पता है ना, सब्जी काटते हैं, चक्कू का औजार का आविष्कार किया गया सब्जी काटने के लिए। आप चाहे पकड़ के हाथ काट लो उससे। समझ आई मैं क्यों कह रहा हूं? तो दो धारी तलवार हो जाती है यूट्यूब। आप देखने लगते हैं वहां पे पंखुरी मैम का माइटोसिस का लेक्चर, नीचे आपको साथ में दिख जाता है लेटेस्ट सॉन्ग्स इन द बॉलीवुड, तो मन वहां पे मचल जाता है और हम वहां क्लिक कर देते हैं, माइटोसिस साइड में हो गया और आप सॉन्ग सुनने लग गए। सो बेटा, फिर वहां पे मैच्योरिटी लेवल इतना रखना जरूरी होता है कि भाई ये समय मुझे आलतू फालतू चीजों में बेकार नहीं करना है। सो आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पंखुरी मैम लेना चाहेंगे आपके साथ। बिल्कुल बच्चों, एक प्यारा सा सवाल आया है आफरीन। अच्छा, जितने भी बच्चों का ये सेम सवाल है वो भी इस जवाब को जरूर सुने। मैम, व्हाट इट टेक्स टू गेट इन टॉप AIR 10? इज इट रियली नेसेसरी टू जॉइन एक्सपेंसिव कोचिंग और स्टडी समवेयर एल्स? बेटा, मुझसे ना आज भी कोई पूछता है, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ,
कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ, तो आज इतने साल बाद स्टूडेंट लाइफ पीछे छूट गई, अब तो मेरे इतने सालों से स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं, मेरा एक ही जवाब रहा है हमेशा, आई हैड द बेस्ट टीचर्स। अगर मेरे पास टीचर्स अच्छे नहीं होते तो मैं वो नहीं होती जो आज मैं हूँ, शायद मैं टीचर भी नहीं होती। तो क्या वो सारे अच्छे टीचर्स एक्सपेंसिव जगहों पर थे? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा कि डॉक्टर सचिन कपूर ने बोला कि टीचर कहाँ पर है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, तो इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक्सपेंसिव सिर्फ आपकी अपनी मेहनत है, वो गुरु कहीं पे भी मिल सकते हैं। अगर डॉक्टर सचिन कपूर मुझे जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो दुनिया की और कोई जगह और कोई ताकत मुझे जेनेटिक्स वैसे नहीं समझा सकती। अब क्या उसकी क्या कीमत है, क्या कीमत नहीं है, ये तो आपको डिसाइड करनी है। सो दैट इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि सही क्या है और गलत क्या है ना। तो कीमत यहाँ पे सिर्फ आपके डिसीजन की है कि मैं सही प्लेटफॉर्म से जुड़ूं। और जैसा कि सर ने कहा कि एक्सपेंसिव चीज यहाँ पर ये नहीं है कि टीचर कहाँ पे है या मुझे कहीं जाना पड़ेगा, नहीं। एक्सपेंसिव ये है कि वो जो बॉलीवुड सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट है वो आप क्लिक ना करके बने रहें क्लास में और रोज आए क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। बार बार हम लोग कहते हैं बेटा जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपका मकसद ऊंचा है तो आपकी कुर्बानियां, आपके सेक्रीफाइसेस भी ऊंचे होंगे। यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा। यूं अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। लेकिन हम हैं आपके साथ, पल पल आपके साथ हैं। इस खूबसूरत माध्यम के जरिए हम हमेशा आपसे मिलते रहेंगे। यूट्यूब पे भी हम आपसे रेगुलरली मिलते हैं। जिन बच्चों ने हमारा चैनल ज्वाइन कर रखा है, आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल, उन्हें पता है कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं। बॉटनी, जुआलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मोटिवेशनल सेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जामिनेशंस। और क्या चाहिए बेटा, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जब इंसान को मिल जाए। सबसे बड़ी बात होती है, जैसे मैम ने ये कहा कि हमें अपने जीवन में अध्यापक किस तरह के मिले कि उन्होंने हमारा जीवन ही परिवर्तित करके रख दिया। शी वाज लकी इनफ। मैम ने जैसा कि कहा, मैं अपने आप को भी स्वयं लकी मानता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ने का मौका मिला। एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। बायोकेमिस्ट्री की हमारी प्रोफेसर होती थी और इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई हमें कि बेटा मुझे सारे अमीनो एसिड चुटकियों में याद हो गए, उंगलियों पे याद हो गए। आज भी अपने कई सेशंस में मैं बिल्कुल आंखें बंद किए सारे अमीनो एसिड्स के नाम ले जाता हूं और स्टूडेंट्स बड़े हैरान हो जाते हैं कि आपको ये चीजें कैसे याद है। ये असर है एक सही शिक्षक का, जो दिए की तरह जलता है और अपने प्रकाश से सारे अंधकार को मिटा देता है। एक सही गुरु को चुन लीजिए, एक सही शिक्षक का चुनाव करके आप उसके साथ जुड़ जाइए एक प्लेटफॉर्म के साथ। आप देखेंगे कि आपका ये कदम आपकी आने वाली जिंदगी को कैसे बदल सकता है। सवाल इतने सारे हैं आप लोगों के दिलों में कि शायद उनका जवाब देते देते हमें पूरा दिन निकल जाए। वी रियली लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कई बार समय की पाबंदी होती है। पर मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि YouTube चैनल पे हम अक्सर आपसे मिलते रहते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। डॉक्टर पंखुरी, अगर आपको कुछ और अहम सवाल लगते हैं तो मैं चाहूंगा कि जरूर डिस्कस कर लीजिए बच्चों के साथ। बच्चों, आपके सवाल बिल्कुल हमारे दिल के पास हैं एंड वी वांट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो जैसा कि सर ने बोला, आप क्लास में आओ, हमसे डायरेक्टली बात करो, कमेंट सेक्शन में रीच आउट टू अस। डेफिनेटली आप बस एक कदम बढ़ाओ, 10 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि मेरा सवाल आज रह गया, कोई भी सवाल नहीं रह गया है। मैम तक, सर तक पहुंचेगा। पकड़ लो मैम और सर को, है ना, चैनल पर आ जाओ। अच्छा, भूलना मत, एंथे का टेस्ट हमें देना है, बिकॉज ये this is only done by Akash Baijus in this country, because we respect, we love your dreams, they are our dreams. ये हमारा एग्जाम है, एंथे का टेस्ट जरूर दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आकाश बायजूस लॉन्च करता है हर साल। लाखों बच्चे देते हैं और जो मेहनती बच्चे हैं वो रिवॉर्ड्स लेकर जाते हैं। रिवॉर्ड्स आपके सामने हैं,
जो भी क्लासरूम कोर्स, अगर आप क्लासरूम कोर्स करना चाहते हो आकाश बायजूस के साथ, तो उसमें आपको 100% अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तैयारी शुरू कर दो, एंथे की नवंबर में एग्जाम होगा, एंड देन देयर आर कैश रिवॉर्ड्स ऑल्सो। Why? Because we want to give opportunity to every student, every learner in this country. तो मिलते हैं आपको आकाश बायजूस नीट चैनल पर। अपने सवाल बनाकर रखिएगा, क्योंकि सवालों के जवाब में ही जीत मिल जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और session. अपने अपने हौसलों से ये मत कहिए कि आपकी तकलीफें कितनी हैं, अपनी तकलीफों से ये कहिए कि हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। हम लोग आपके साथ हैं, आपकी मेहनत, हमारी गाइडेंस, आकाश बायजूस नीट का ये प्लेटफॉर्म आपको सफलता जरूर दिलाएगा। भरोसा रखिए अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोगों के साथ जुड़े। मैं आपके माता पिता का, आपके पेरेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। नमस्कार। Thank you.